Sheila Didi is a dedicated teacher who takes the Guru Shishya Parampara very seriously. For her foreign students too, she makes it a point to imbibe this quality in the students and to establish this relationship even with the students who are living abroad like I am. It is very difficult to find gurus like Sheila Didi, who are so simple and down to earth, with no frills attached. There is no guesswork and no fear of judgment, which is so important in an environment of learning. She really treated us as fellow dancers and involved us in every process of the way, so she came more often naturally. Sheila ji is just wonderful, keeping the students engaged into their dance, and literally एक तरीके का meditation mode है. When she comes out from the class, she's so happy and she's so joyful, and at the same time she is gaining one art into her lifestyle. She really cares about you as a person and makes effort to get to know you, to observe you, often in ways that we also haven't observed ourselves, and to use that to find ways to continually enhance our own personality and our day-to-day being overall. So in that way, she's definitely using Kathak to grow us from the inside. But what I also appreciate is that she challenges us to think about ways in which we can also give back to the arts. Her dedication towards her students is truly inspiring, and I am honored to be training under her. She is a guru in every sense, and she will never rest until she brings out the best in us. Sheila Didi, as we all know, of course, is one of the renowned exponents of Kathak who's really brought it onto a global platform. But I would also like to highlight many other wonderful qualities that she has as a classical arts practitioner, as well as a person who can bring about a spiritual development in every one of her disciples. Sheila Didi is not only a wonderful teacher, of course, she's a wonderful administrator, a wonderful entrepreneur, and above all of this, she really has the qualities of a guru. सभी का सादर अभिवादन। आज इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं कथक नृत्यांगना गुरु शीला मेहता। हम उनकी जीवन यात्रा को सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। शीला जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपको हार्दिक अभिनंदन देना चाहती हूँ इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के बदल, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें याद किया और आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच। शीला जी, आपसे आज का जो सबसे पहला हमारा यही सवाल है, हम सभी जानना चाहते हैं कि आपका नृत्य के साथ में एक रुझाव और लगाव है, वो किस तरीके से बना, और विशेष तौर पर आपने कथक को ही क्यों चुना? आपका पहला प्रश्न है कि मैं नृत्य क्षेत्र में क्यों आई और कथक मैंने क्यों चुना। हाँ, मेरे परिवार में कोई भी नृत्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं ही प्रथम हूँ। मेरे पिताजी और माताजी काफ़ी रिलीजियस थे,
मेरे पिताजी को हवेली संगीत का बहुत शौक था और माताजी को लोकगीत का। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी सुबह में उठते ही हवेली संगीत की कैसेट लगाते थे और मेरी आँख खुलती थी संगीत सुनते ही, और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो माहौल। और मेरी माँ भी कोई भी काम, घर काम करते करते हर समय उसके मुंह पर कोई भी लोकगीत वो गुनगुनाया करती थी। तो ये काफ़ी मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। और मैं छोटी थी तो मैं काफ़ी पैशनेट भी थी, मुझे हर चीज़ का बहुत शौक़ था। मैंने बहुत सारे क्लासेस किए, डांस के तो किए ही है, और उसके अलावा मैंने क्लासिकल म्यूज़िक का, फिर मैंने गिटार सीखा। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं रोलर स्केटिंग में मुझे नेशनल चैम्पियनशिप के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। मैं अच्छी स्विमर रही हूँ। मैं गीता का क्लास करती थी, भगवत गीता के, ये जहाँ पर आपको अध्याय सिखाए जाते थे हमें। और मुझे याद है तब मुझे पहला, दूसरा, देन 12वां, 13वां, 15वां और 18वां अध्याय एकदम बाय हार्ट था। तो उसके अलावा मैं फोक डांस भी बहुत पसंद करती थी करना। तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा शौक़ था और स्टिचिंग का। तो हर चीज़ मैं करना चाहती थी, कहने का मतलब है। मगर कहीं ना कहीं नृत्य, डांस मुझे खींचता था। मुझे आज भी याद है जब मैं ऑलमोस्ट 4.5-5 साल की रही होंगी, तो मेरी माँ, हमारे बगल में डांस क्लास हुआ करते थे और वी वेर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो माँ से बहुत होता नहीं था और उसने मुझे डांस क्लास छुड़वा दिया। तो मैं बहुत रोई, 1.5 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया। और जब पिताजी ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बहुत इंटरेस्ट है तो हमें निकालना नहीं चाहिए। मेरी ज़िद थी तब कि आप मुझे स्कूल से निकाल दीजिए मगर डांस क्लास से मत निकालिए। तो कहीं ना कहीं डांस से ये खिंचाव रहा बचपन से ही। अभी क्यों तो वो तब तो मालूम नहीं था। ऐसे ही मेरी डांस की जर्नी शुरू हुई। तो डांस में मैंने मणिपुरी सीखा गुरु बिपिन सिंह जी से, कलावती दीदी से। जवेरी सिस्टर्स तब बहुत पॉपुलर थे और वो आते थे कलकत्ते में। तो मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए मणिपुरी के। मैंने उसके अलावा मैं रविंद्र नृत्य, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सीखा और डांस, बैलेस वगैरह किए। मेरे पहले गुरुजी रहे कथक के गुरु प्रहलाद दास। हम लोग उनको मास्टर जी कहते थे, तो मास्टर मोशाय। तो नृत्याचार्य प्रहलाद दास जी वो हमारे प्रथम गुरु रहे। और थोड़ी मैं जब बड़ी हुई तो मुझे उनके घर पे जाके सीखने का मैंने शुरू किया, उनके घर पे जाके तालीम लेने के लिए। तो वहाँ से मैं कह सकती हूँ, जब मैं उनके घर पे जाना शुरू किया मैंने, तो वहीं से मेरी शायद कथक की जर्नी ज़्यादा सीरियसली शुरू हुई। तब मैं अंदाज से 12-15 साल की रही होंगी। और गुरुजी के पहले उनके पुत्र थे पंडित चित्रेश दास जी, जो अभी नहीं रहे, जो कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में उसने अपना बहुत बड़ा स्कूल अभी भी चल रहा है। तो चित्रेश भैया, जिनको हम लोग दादा कहते थे, तो वो तब वो यूएसए में तब जस्ट सेटल हुए थे। तो वो भी 6 महीना यहाँ पर आते थे, इंडिया आते थे, कैलकाटा। और उनके पास में भी मेरी तालीम हुई कथक की। तो हमारे पहले गुरुजी प्रहलाद दास जी जो थे, वो राम नारायण मिश्रा जी के शागिर्द रहे और अच्छन महाराज जी की भी शागिर्द रहे। तो मैं जब उनसे सीखती थी, मैं बहुत छोटी थी, तो उनसे मुझे बहुत सारी
स्टोरीज़ वो बहुत कहते थे, मैंने उनके अनुभव कहते थे कि कैसे तब बाऊ बाज़ार में वो जो बाई जी के घर पे जाना और सिखाना, तो मुझे सब स्टोरीज़ ऐसे याद है वे कि एक धाता का थुंगा सिखाया और 100 रुपया मिला। तो ऐसे मास्टर मशाय बहुत सारी हमें स्टोरी कहते थे। और उन्होंने कैसे अच्छन महाराज जी के पास में सीखा। उन्होंने मुझे एक ठुमरी भी सिखाई और उन्होंने कहा कि ये ठुमरी मैं तुमको ही सिखाता हूँ, और ये मैंने शायद कोई करता नहीं है। अच्छन महाराज जी से उनको ये ठुमरी मिली थी। तो वो काफ़ी उनके साथ में रहे थे। उसके बाद में शंभू महाराज जी का भी आना जाना बहुत होता था कलकत्ता में, तो भाव सीखना उनका उनसे। तो उस तरीके से मेरी मैंने हमारे गुरुजी के साथ में बहुत तालीम हुई। वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे थे। उसके अलावा चित्रेश भैया जब आते थे तो हम लोग काफ़ी प्रोग्राम भी करते थे उनके साथ में। तब तो परफॉर्मेंसेज उतने नहीं होते थे, मगर कलकत्ता में बहुत माहौल अच्छा था, ये कहना। और एक दूसरा ये फ़ायदा हुआ था मुझे कि मैं, क्योंकि उन्हीं के घर पे ही मैं पली बड़ी रही गुरु शिष्य परंपरा की तरह, तो उसमें बहुत सारे वहाँ पर जाकिर भाई, ओनिंदो चैटर्जी, सबीर खान, स्वप्नमय बैनर्जी, स्वपन चैटर्जी, सभी लोग इतने बड़े बड़े कलाकार हमें ऐसे ही मिलते थे देखने के लिए। रियाज हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, प्रोग्राम की बातें हो रही हैं। तो ये माहौल से मेरा कथक के साथ में शायद ये जो परिवेश रहा, उससे मुझे एक बहुत, मैं कथक के साथ में ज़्यादा जुड़ गई। और हमारे मास्टर जी की माशिमा, उनकी जो वाइफ थी, उनका भी बड़ा योगदान रहा मुझे कथक क्षेत्र में लाने के लिए, कि वो काफ़ी हमें सब समझाती थी कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो घर पर, जैसे मैंने कहा कि मैं गुजराती परिवार से हूँ, घर पर मुझे नृत्य का माहौल नहीं मिला, मगर ये फैमिली में गुरु शिष्य परंपरा में रहते हुए मुझे कथक की तरफ मेरा झुकाव और मेरी लगन और मेरी यात्रा अच्छी तरह से बढ़ी। उनके बाद में मैंने, जब हमारे गुरुजी प्रहलाद दास जी अच्छी, उनकी तबीयत नहीं रही, तो उन्होंने ही मुझे पंडित विजय शंकर जी, जिनके पास में मैंने सीखा, वो पदातिक में तब रेसिडेंट गुरु थे, तो उनके पास में उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दी। तब तो बहुत ही था, एक ही गुरु में मैं भी मानती हूँ, और हम लोग जाते नहीं थे, मगर गुरुजी ने आज्ञा दी और मैं विजय शंकर जी के पास में गई। पदातिक में जाने के बाद में मेरी जर्नी काफ़ी एक परफॉर्मर की तरह आगे बढ़ी, जो हमने गुरुजी से, विजय शंकर जी से बहुत पाया। और उस दरमियान पदातिक जो श्यामानंद जालान और चेतना जालान जी, जिन्होंने उनकी स्थापना की पदातिक की, और वहाँ पर बहुत सारे गुरु केलुचरण महापात्रा, कलानिधि मामी, बिरजू महाराज जी तो तब मैं कहती हूँ कि तब महाराज जी आना शुरू किए थे, और बहुत हम लोग को टाइम मिलता था महाराज जी के पास में सीखने का। और मैंने केलुचरण महापात्रा जी के पास भी थोड़ी से ओडिसी के वर्कशॉप किए थे। उन्होंने कहा कि मैं ओडिसी बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मगर फिर भी जो आपका सवाल है कि मैंने कथक क्यों चुना, तो मैंने तब कथक ही चुना। शीला जी, आपके गुरुओं में मास्टर मोशाय प्रहलाद दास जी, पंडित विजय शंकर जी जैसे गुरुओं के साथ में आपका सीखना हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो गुरुओं के साथ में आपने सीखा, तो उन गुरुओं की अपनी शिक्षण की पद्धति में और सिखाने की पद्धति में क्या विशेषता थी? उनके नृत्य की और उनके सिखाने की अपनी अपनी क्या विशिष्टताएं हैं,
वो एक शिष्य बहुत बेहतर बता सकता है। मेरे पहले गुरु नृत्याचार्य पंडित प्रहलाद दास जी रहे, जो राम नारायण मिश्र जी के शागिर्द रहे और अच्छन महाराज जी के भी शागिर्द रहे। प्रहलाद दास जी को हम लोग मास्टर मोशाई कहते थे, तो उनके घर पर ही मैं पली बड़ी रही। मास्टर मोशाई की जो मुझे बात याद आती है, वो इतने डिसिप्लिन थे। वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे। वो इतने डिसिप्लिन थे कि उनका पहनावा, उनके बाल, आप एक एक चीज़ को आप देखें तो आपको कभी भी वो कहीं पर भी वो इनडिसिप्लिन नहीं दिखेंगे। इन ए सेंस कि आपने उसको कभी भी शैबी की तरह देख लिया, ऐसा नहीं था। मास्टर मोशाई हर समय एक अपनी पर्सनालिटी बना के रहते थे। वो मुझे बहुत छूता था एज ए चाइल्ड। और उनका टाइम का पंक्चुएशन, वो उन्होंने किताबें भी लिखी है, तो वो काफ़ी वो परफॉर्मर कम रहे, मगर वो ज़्यादा उसका एकेडमिकली डांस को एकेडमिक की तरह से उन्होंने ज़्यादा उसमें उनका योगदान रहा। और उसके बाद में मैंने तालीम ली पंडित विजय शंकर जी से। गुरुजी का, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं पहले गुरुजी के पास में मैं परफॉर्म करती थी, मगर जब मैं विजय शंकर जी के पास में आई, तब मुझे नृत्य की रूह, मैं कह सकती हूँ, मेरी नृत्य की रूह का जन्म हुआ। या तो आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग डांस। पहले था वो, शायद एक्सपीरियंस तो था, अच्छा लगता था, मगर वो क्लैरिटी नहीं थी जो इनके पास में आके मुझे क्लैरिटी। विजय शंकर जी, जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने हैदराबाद में रामकृष्ण शुक्ला जी से उनकी फर्स्ट तालीम हुई, और वो बड़े अच्छे तबला वादक भी थे। उनके बाद में उन्होंने बिरजू महाराज जी से, और वो वन ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल्स रहे महाराज जी के। और मैंने ऐसे गुरु भक्त आज तक कोई डिसाइपल नहीं देखा है। गुरुजी, जहाँ तक मुझे एकदम याद है, जब मेरा पहला क्लास कि उनके क्लास में गई, तो क्या म्यूजिकलिटी, इतनी उनकी, मैं कह सकती हूँ कि उनका जो डांस था और डांस देखने का नज़रिया था, इतना संगीतमय था। मैंने डांस इतना हम लोग संगीत करके देख सकते हैं, ये उनके पास से मुझे सीखने को मिला। व्हेन आई एम सेइंग संगीतमय था, आई मीन कि जनरली डांस मीन्स हम लोग मूवमेंट्स हम लोग फील करते हैं ना, बॉडी को फील करते हैं, मगर गुरुजी के वहाँ पर मुझे वो बॉडी, इट वॉज बियॉन्ड बॉडी। आई डोंट नो वेदर आई एम क्लियर और नॉट। सो इट वॉज बियॉन्ड बॉडी, मैंने वो आपको छुआ सकते थे उतना। उसकी जो मूवमेंट्स थी, उन्होंने बहुत सुंदर एक वेरी सिंपल ताकिट ताकिट तक ताकिट तक ताकिट, उसके ऊपर में उनकी मूवमेंट्स उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। मैंने बॉडी की, अंग की सुंदरता लाने के लिए। क्या जवाब नहीं। जब क्लास में सब लोग करते थे तो ऐसा लगता था कि मैंने रस से भरा हुआ क्लास है। तो एक बात कि नृत्य को कठिन करके नहीं आना चाहिए, नृत्य तो आपको गलवा देना चाहिए। आप देखते हो तो अभी आप पिघल जाते हो, मैंने कठिन तरीके से सामने आ जाए और आप भी दिमाग से नृत्य को देखने लगे, वो नहीं था। आप एक मई हो जाना, जब आप देखते हो। तो मुझे एकदम याद है माय फर्स्ट क्लास व्हेन आई वेंट टू सी द क्लास एट पदातिक, इट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। गुरुजी, दूसरा मैं कहूँगी कि आई थिंक हर गुरु तो इंस्पायर होता है। He was a silent inspirer. He was a man of few words. बहुत बोलते नहीं थे। मुझे आज तक भी नहीं याद है कि कभी भी उनके मुंह से वाह शब्द निकला हो, मगर आपको वो साइलेंस में ही बहुत सारी बातें, उनका कम्युनिकेशन रहता था।
तो वो ऐसे गुरु थे कि आपको ऐसे शागिर्द बन कर के उनकी बात समझ लेनी है। सो इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी, है ना, तो आप उनको पा सकते हो। वो इतने सुरीले, उनका म्यूज़िक कंपोजिशन का है। अच्छा, उनकी जो बंदिश की जो काट छाट थी उसमें भी इतनी बातचीत होती थी, जैसे दो धान धान धा तकिट दिकिट धा तदा तकिट धा गिंग तदा गिंग तदा तदा तकिट धा दिकिट धा दा तदा तकिट धा तकिट तथी ता तकिट दिगे तथी तकिट तथी ता तकिट दिगे तथी तकिट तथी ता ना ना दिन दिन ता, मैंने हर धान धान धा तकिट दिकिट धा तदा तकिट धा गिंग काट छाट, उसके साथ में भी ऐसा लगता है कि हर शब्द और हर वर्ण और हर क्या बोलते सिलेबल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनका एक जो पूरी दुनिया करते हैं, पूरे कथक वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर था, ताकि टिका ताकि दिखे ताकि टिका ताकि दिखे लड़ी करते थे, हम लोग करते हैं। तो तक टिका ताकि दिखे ताकि टिका ताकि दिखे ताकि ताकि दिखे ताकि ताकि दिखे ताकि टिका ताकि दिखे, बहुत ही सरल, मगर आपको फेस पर स्माइल आ जाए, आपको आनंद आ जाए। तो उनकी हर बंदिश का ऐसा था। गुरुजी का भाव भी बहुत सूक्ष्म, उसको भाव सोचने का मेरे साथ में उन्होंने एक सूरदास पद पर एक काम किया था, वह छवि अंग निहारत श्याम, बहुत ही स्वाधीन पति का, बहुत सुंदर, जो मैंने शरद चंद्रिका में भी किया था। तो उसमें कुछ नहीं करते हुए पूरे भाव हुए थे। तो इस तरीके की सोच के वो कलाकार थे। और क्या कहे गुरुजी, कथक में कलकत्ते में तो कथक का बहुत बड़ा माहौल रहा है। और जब गुरुजी कलकत्ते में आए दिल्ली से, तो कह सकते हैं कि कथक में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सब पूरी दुनिया कह रही है कि कथक में, कलकत्ते में जितना भी कथक में तब बदलाव आया, इट वॉज जस्ट ड्यू टू पंडित विजय शंकर जी, कि उन्होंने पूरी कथक की जो छवि है उसका बदलाव किया। सो बहुत अच्छे उन्होंने शागिर्द भी तैयार किए कि जो सब आज पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब उनकी देन है। इट वॉज एन एक्सीलेंट गुरु। और गुरुजी महाराज जी के तो ऐसे भक्त रहे हैं कि और ये जो सारी सोच है वो सब महाराज जी की उन्होंने ली और उन्होंने मेडिटेट किया, और उसके बाद में उनका इनोवेशन हुआ। जो महाराज जी ने बहुत अच्छी जगह से एक मैंने पढ़ा था, कहीं पर बताया कि ही इज़ द डिसाइपल हु फर्स्ट लर्न माय एस्थेटिक्स and then he meditated and then he started doing innovation. So that is how the correct way शिष्य गुरु की शिक्षा का ग्रहण करता है। सो महाराज जी के भी बहुत वो प्रिय शागिर्द रहे हैं। एक भी हम लोग का क्लास नहीं गया होगा जहाँ उन्होंने महाराज जी की याद नहीं की होगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा सीखना गुरु जी से मिला, गुरु भक्ति इन अ ट्रू सेंस। मैंने उसके बाद में मैंने ऑफ कोर्स महाराज जी से, तो मैं कहती हूँ एकलव्य की तरह कि महाराज जी से मैं दिल्ली भी गई थी, और मैं महाराज जी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, मैं कहीं पर भी हूँ, आई विल नॉट सी दैट आई नेवर मिस महाराज जी प्रोग्राम। मैं तो महाराज जी को सुनने के लिए जाती हूँ। मैं कहती हूँ महाराज जी इतना अच्छा बोलते हैं, तो वो सोच है, तो एक महान व्यक्ति है, कलाकार है, कि उनकी सोच इतनी गहरी है कि उनका चिंतन, और मैं कहूँगी कि महाराज जी ने एक कथक वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया है। क्योंकि मैं एक पुराने तरीके से भी मैंने कथक सीखा है, तो अंग के ऊपर में तब उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, यानी कि कंटेंट पर दिया जाता था कि ये बंदिश है, कोई भी तबला की बंदिश या पखावज की बंदिश, आपको एक तोड़ा टुकड़ा दे दिया, आपने अंग कर लिया, आप निकल गए। मगर महाराज जी ने वो नहीं किया। महाराज जी ने पूरा एक वेरी साइंटिफिक वे ही हैज ट्रीटेड डांस। सो मैं तो उनको साइंटिस्ट कहती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसा साइंस दिया है कि आप उस
मेथड को फॉलो करेंगे जो हम लोग ने गुरुजी से पाया, और गुरुजी तो वाकई ना कहते सब महाराज जी की देन है, एंड यू कैन रियली सी, क्योंकि हम गुरुजी से सीखे डायरेक्टली, और जब महाराज जी के पास में जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि वो एक्सटेंशन है। तो उन्होंने एक ऐसा साइंस दे दिया कि आप वो फॉलो करोगे तो नृत्य सुंदर ही हो। ज़्यादातर हम शीला जी कथक मतलब हम संगीत की बात करें कि संगीत जगत में हम हमेशा कहते हैं कि संगीत एक भक्ति का एक मार्ग है। हम जो आर्टिस्ट हैं हमेशा यही बोलते हैं कि हम एक भक्ति है, हमारे लिए संगीत एक भक्ति है और हम उसको एक आनंद की प्राप्ति हमको होती है। तो हम खास तौर पे कथक के विषय में आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपने कथक को किस स्वरूप के साथ में अपनाया। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो मनोरंजन की कला है या एक भक्ति को के साथ में आनंद की प्राप्ति का भी एक रास्ता है? मुझे लगता है कि जब मैं देखती हूँ पीछे की तरफ में और बीच बीच में जब ये थोड़ी सी हम लोग को समझ आती है, तो कथक जब मैं छोटी, कथक में जो नगमा है, जो ताल है, जो लय है, मुझे वो पक्ष बहुत आकर्षित करता है। और जो अभिनय हम लोग कथक नृत्य में कहते हैं, चाहे कथक ऐसी बात नहीं है, कोई भी आप शास्त्रीय नृत्य के अभिनय की बात करते हो, तो जो नृत्य में, जो प्योर डांस में जो अभिनय है, जो भाव, तो एक भाव होते हैं कि हम कोई स्टोरी करते हैं, उसके भाव है, उसका अभिनय है, मगर एक भाव है हु यू आर, तो वो काफ़ी आध्यात्मिक है। तो ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है डांस का, आध्यात्मिक, कि द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग हु यू आर, वो हम हर कलाकार, सिर्फ मैं नहीं, जो डूबे है वो हर पाता है। और उसी के लिए मुझे लगता है कि शास्त्रीय नृत्य में हम लोग जब डूब जाते हैं तो हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, वो वही है, क्योंकि वो जो एक आध्यात्मिक शक्ति अपने नृत्य में है जो आपको, और आपने उसका थोड़ा सा रस चख लिया है तो आप छोड़ नहीं सकोगे। सो हैविंग सेड दैट, मैं जब छोटी थी तो मैं काफ़ी रिलीजियस थी। रिलीजियस, मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। मैं शंकर के बहुत मैं भक्त रही हूँ। मैं बहुत फास्टिंग करती थी, उपवास करती थी, मैं पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, तो वो मेरे लिए, और शिव को मैं बहुत मानती थी। और भगवान के सामने आधा घंटा बैठना और ओम नमः शिवाय करो तो मुझे बहुत शांति मिलती थी। और वही चीज़ मैं जब डांस क्लास में जाती थी, जब छोटी थी, तो जब तत्कार करती हूँ या तो नगमा बजता है, मुझे अभी भी याद है कि नगमा हम लोग को साल में एक बार ही मिलता था। जब परीक्षा देते थे तो अगले दिन आते थे, तो रामनारायण मिश्रा जी आते थे, नगमा रमेश मिश्रा जी के फादर तब बजाते थे, तो वो आते थे, तो हम वेट करते थे कब परीक्षा हो, अगले दिन में नगमा आए, रामलाल जी आए और बजाए। तो मुझे वो नगमा का जो साइकिल है, जो राउंड साइकिल है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, छूती थी कहीं ना कहीं बचपन से ही। और ये जो छूना और एक पाना और भगवान के सामने बैठ के उसकी पूजा करना, ये सब मुझे बहुत एक ही लगता था। बचपन से ही ऐसा ही होता था कि वो एक शांति मिलती थी, जो भी आपको अच्छा लगता था, जो भी। तो ये आध्यात्मिक जो एस्पेक्ट है नृत्य का, वो मुझे, शायद मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं वहीं पर ही, मेरा कनेक्शन था डायरेक्टली वहीं पर। और तो वो मैं कभी नहीं छोड़ पाई और छोड़ भी नहीं सकती हूँ। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी रियली लकी एंड ब्लेस्ड। ये मुझे बचपन से ही
कि समथिंग लाइफ बियॉन्ड क्या है, ये क्यूरियोसिटी बहुत रहती थी। मैं हर समय कोई भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स की तरफ मैं अट्रैक्ट होती हूँ। मुझे ओम बहुत पसंद था। जैसे कोई भी राउंड फिगर होता है, डॉट होता है, तो मैं अट्रैक्ट हो जाती थी। मुझे स्पिरिचुअल गुरुज और स्पिरिचुअल बातें, आध्यात्मिक, तो जाने न जाने ना मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, मगर मुझे नेचुरली उसकी तरफ एक अट्रैक्शन था। और वो सारा, तो वो जो मेरे अंदर में जो प्यास थी आध्यात्मिक की तरफ जानने की, वो सारी प्यास मेरी कथक जब मैं करती हूँ तो मुझे वहाँ पर आई थिंक मुझे आंसर्स मिल जाते हैं। तो शायद नहीं, तो अभी मैं पक्का ही कहती हूँ कि मुझे हर वो प्रश्न के अंदर जो मेरे अंदर थे, आध्यात्मिक प्रश्न, उसके जवाब के लिए मैं शायद कथक कर रही हूँ, ऐसे कह सकती हूँ कि या जरूर से दैट इज़ व्हाट माय कनेक्शन टू कथक इज़। क्योंकि हर कोई डांस तो वही है, नृत्य वही है, हालांकि अपने क्लासिकल डांसेस तो काफ़ी मल्टी लेयर्ड है, फिलोसॉफिकल है, माइथोलॉजिकल है, ग्लैमरस है। तो कोई डांस ग्लैमर के लिए, पॉपुलर बनने के लिए करता है, कोई पैसा कमाने के लिए करता है, कोई मैंने सर्वाइवल के लिए करता है। सबका एक अपना अपना कनेक्शन रहता है और हर कनेक्शन सही है। आई मीन आई रिस्पेक्ट ऑल द कनेक्शंस, इट इज़ जस्ट द कनेक्शन। और एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी है डांस का, और वो शायद ज़्यादा ही है। नाट्य शास्त्र में तो उसके लिए इतना लिखा भी गया है। तो शायद मेरा, शायद नहीं, पक्का ही है ये आध्यात्मिक कनेक्शंस के लिए मैं वो प्रश्न के और अभी भी खोजती रहती हूँ, और बस आनंद मिलता है। शीला जी, जैसे आपकी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कोरियोग्राफी आपने की है, आपका एक बहुत लंबा अनुभव है जिसमें आप कोरियोग्राफी भी कर रही हैं, शिक्षण भी दे रही हैं। तो हम ये देखते हैं वर्तमान संदर्भ को देखते हुए कि पहले कथक में खाली म्यूजिशियंस और कथक और ऑडियंस, इनके आपस के एक संवाद होते थे। वर्तमान स्थिति में इसमें बहुत कुछ चीजें जुड़ गई हैं। लाइट है, साउंड है, मंच की व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो इसके सपोर्टिव जो एलिमेंट है, लाइट और साउंड है और जो मंच है, वो एक कला को कितना उभारता है, या फिर वो उसकी कला को, वो उसकी महत्ता को कम करता है? नृत्य में कितना लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स, नृत्य की प्रस्तुत में ये सब का कितना महत्व है। ऑफ कोर्स ये तो सब आहार्य अभिनय में आता है ना। हमारे 4 अभिनय है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो ये सब आहार्य में आता है, तो एकदम आप कर सकते हैं। मगर हर समय मुझे लगता है कि यदि ये जो वाई, अपना जो वाई है ना, क्यों कर रहे हैं, वो यदि वो जितनी भी उसमें क्लैरिटी रहती है ना खुद को एज ए कोरियोग्राफर, तो आप एस्थेटिक्स पूरे रख के और बड़े इफ़ेक्टिव वे से आप सक्सेसफुली आप निकल सकते हो। बाय सेइंग दैट आई मीन इज़ दैट कि आप यदि कुछ समझ लीजिए लाइट यूज़ कर रहे हो, तो वो लाइट कोरियोग्राफी को डिस्टर्ब कर रही है या इन्हेंस कर रही है। आप समझ लीजिए कोई कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी देखिए, अभी मैंने निमित्त किया जो अम्बा शिखानी के एपिसोड पर था, तो वो सोलो प्रोडक्शन ही है। तो बहुत जगह में मुझे लगा कि मैं यदि लाइट, बैक लाइट यूज़ करूँगी तो मैं जो दिखाना चाहती थी, जो रस दिखाना चाहती थी और जो भी मेरा कैरेक्टर आ रहा था, वो इन्हेंस होता था और लोगों को ज़्यादा वो क्लियर होके सामने स्टोरी आ जाती थी।
तो एक सिंपल रूल है कि यदि आप जो भी यूज़ करते हो उससे आप ऐड करते हो अपनी कोरियोग्राफी में, और वो उसमें मर्ज हो जाना चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ करो, आप ट्री यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ भी आपने यूज़ किया, इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ योर कोरियोग्राफी। लाइट भी एक कैरेक्टर की तरह आपके साथ में मिल जाना चाहिए। लाइट अलग है और आप भी एक कैरेक्टर से अलग आता है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये क्लासिकल क्यों लाइट यूज़ कर रहे हैं। मगर आप सभी एक बन के यदि सामने आ जाते हो तो rather it enhances the production. I hope I'm clear. कॉस्ट्यूम में भी ऐसा है, कभी हम लोग ज़्यादा गॉडी कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं तो प्रेक्षक की नज़र आपके कॉस्ट्यूम पर ज़्यादा जाती है कि अच्छा कपड़ा पहना ये है डांस के लिए। यू शुड नॉट यूज समथिंग विच इज़ ओवर पावरिंग यू, आई वुड से। कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ मत करिए जिससे आपका डांस ओवर पावर हो जाए। शीला जी, आज हम आपकी ज़ुबानी ही आपकी यात्रा को हम ज़्यादा सुन रहे हैं और आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से और बता सकती हैं। तो हमारा एक प्रश्न और है कि आपकी कौन कौन सी मुख्य कोरियोग्राफी, कौन कौन सी संरचनाएं आपकी कथक की जीवन यात्रा में जुड़ती गई, वो कृपया हमें बताइए। मेरे काम को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगी। एक है प्रोडक्शंस यानी कि कोरियोग्राफी बोथ सोलो एंड ग्रुप, और दूसरा है टीचिंग्स एंड स्प्रेडिंग दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। मैंने अनेक प्रोडक्शंस किए हैं, जैसे अभिसार, महासती, वुमेन स्पीक, मूड स्पेक्ट्रम, उसके बाद में दशावतार, रसोत्सव, नीलधनुष, लोकोत्सव, रंगोत्सव। इसमें 10 के ग्रुप से लेकर के 1500 पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप रहे हैं। मैंने काफ़ी लाइट्स, प्रॉपर्टी सेट सभी का इस्तेमाल भी किया है जस्ट टू मेक इट मोर विजुअली अट्रैक्टिव एंड एस्थेटिकली प्लेजेंट। सोलो प्रोडक्शंस में मैंने निमित्त जो चारणी कथक में है, नई का भेद, बरखा, होली, नवरस में चारणी कथक, ऐसे कहीं हैं। मैंने देश और विदेश दोनों जगह अच्छे अच्छे शागिर्द तैयार करने की कोशिश की। इन 1983 नूपुर संकार मेरी जो संस्था है वो कोलकाता में उसका जन्म हुआ, और उसके बाद में मुंबई में मैं 1998 से मैं USA, यूरोप, मिडिल ईस्ट परफॉर्मेंस के लिए, वर्कशॉप के लिए, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए मैं टूर करती रही। मैंने यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप की 2002 और 3 मुझे याद नहीं है, मगर उसमें वन ऑफ दोस आई वाज इनवाइटेड बाय ISPA Manhattan as one of the 7 fellow members to that conference, and it was attended by delegates from 35 countries. तो वहाँ पर मुझे इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में बोलने का मौका भी मिला, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा था। इन 2008 मैंने बेल्जियम में माया सपेरा, जो मेरी शागिर्द रही है, उसके साथ मैंने वहाँ पर नूपुर संकार सेंटर इस्टेब्लिश किया। फिर 2014 में UK में मेरी अनदर माय सिंसियर डिसाइपल डॉक्टर शिवानी शर्मा, तो वहाँ पर सेंटर शुरू हुआ UK में। और 2016 में मैंने न्यू जर्सी USA में नूपुर संकार फाउंडेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लॉन्च की। तो
इस तरीके से हर जगह, हर सेंटर पर कथक का सीरियस काम हो रहा है। कथक को ही हम केंद्र में रख के शीला जी बात कर रहे हैं कि बहुत से साहित्यकारों ने, कवियों ने कथक पे लिखा है, और कृष्ण साहित्य तो खास तौर पर यहाँ की एक सशक्त परंपरा में से है। आपका जन्म भी कलकत्ता में हुआ, आपकी जो एक नृत्य की एक पूरी एक मंजिल कह सकते हैं, और एक नींव पड़ी, और उसके बाद में इमारत भी वो एक कलकत्ता की ही आपकी एक देन है। लेकिन आपका जो एक काम है जिसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिली, चारणी साहित्य पर, तो चारणी साहित्य तो ज़्यादातर जो उसका प्रचलन है वो हम गुजरात से देख सकते हैं। आप हैं ज़रूर गुजरात की, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि चारणी साहित्य को आप जरा हमसे एक विस्तार में भी बताएं, और साथ ही बताएं कि उसमें आपकी कुछ अंश आप हमको शेयर कीजिए उसमें से। तो चारण एक जाति है। चारण का अर्थ है लाइक दैट दे आर द स्टोरी टेलर्स, यानी कि कथाकार भी कहे जाते हैं वो। और चारण का उल्लेख हमें महाभारत में, रामायण में, जैन माइथोलॉजी में और ओरल ट्रेडिशंस में भी मिलता है। ये कम्युनिटी ज़्यादातर, ऐसा तो पूरे देश में फैली हुई है, मगर ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में स्थायी हुई है। उसको देवी पुत्र भी मानते हैं, और ये लोग बड़े शिक्षित नहीं होते, मगर ताज्जुब की बात है कि उसकी ज़ुबान पर कहते हैं कि सरस्वती का वास है। ये लोग काफ़ी लॉयल है, चिंतनात्मक मानस है उनका, हिम्मत वाले, साहस वाले, खास करके लड़ाई और युद्ध के समय वो राजा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। ये चारणी स्टाइल शायद एक सबसे पुरानी कथा कहने की पद्धति रही है। चारणी साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो नाद प्रधान है। आई थिंक इट्स द ओनली लिटरेचर वी फाइंड इन इंडिया। ये डिंगड़ी और पिंगड़ी दोनों भाषा में मिलता है, जिसमें दोहा, छंद, कविता और बहुत समृद्ध पाठ का उल्लेख मिलता है। चारणी कथक में मैंने बहुत सारी प्रस्तुति की है, जैसे नवरस, दशावतार, नायिका भेद के कविता, छंद, दोहा साहित्य से दोहा पर भी प्रस्तुति की है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत मेरा प्रिय कविता है जो गोविंद भाई गिला भाई ने लिखा है, जिसमें 16 श्रृंगार का, जो हम लोग काफ़ी नृत्य में कहते हैं, 16 श्रृंगार एक नायिका का वर्णन है। सुनिए। प्रथम नहाई अंग, प्रथम नहाई अंग, राग को लगाई अंग, बार को बनाई शीश, चूड़ामणि साजे है, भाल में तिलक, नैन आंजन, तरोन कान, नथ नाक, पान मुख, कंठहार भ्राजे है, कंशुकी उरोज, कर कंकन, कमर कांची, पाए में नुपुर चीर, पाट को बिराज है। गोविंद कहत ऐसे, चतुरी समेत अंग, सोरह सिंगार सोई, सुंदरी ने साज है। सोरह सिंगार सुंदरी ने साजे है। एक और कविता सुनिए, जहाँ एक नायिका श्रृंगार से कैसे साधुता में प्रवेश कर लेती है। उसका इस कवित्व में बहुत सुंदर वर्णन मिलेगा, जो नाराज छंद में है। कैसे नायिका श्रृंगार उतार कर पीताम्बर पहन लेती है, योगिनी स्वरूप लेकर
चंदन लेप के बदले में वो भभूति लगा लेती है। फूल माला के बदले में वो रुद्राक्ष की माला अपनी कलाई में पहन लेती है। काली जो आंख होती है उसकी, वो लाल बन जाती है गुस्से से। वीणे की बदले जटा धारण कर लेती है वो, वीणे के बदले। प्रियतम के बदले भगवान में वो अपना मन लगा लेती है। भाल पर गोल बिंदी के बदले वो अर्धचंद्र बिंदी कर लेती है। उसके बाद में जो ओढ़नी पहनते हैं उसके बदले में वो लाल रंग का दुशाला जो होता है वो आधे अंग पर वो पहन लेती है और पद्मासन में बैठ के ध्यान लगा देती है। फिर उसके बाद में अपना ये जो उसने जो साधु स्वरूप देखने के लिए वो आईना मंगवा लेती है, आईना देखती है और अपने पर ही खुद हंसने लगती है। तो ये बहुत ही सुंदर से जो परिवर्तित एक नायिका का होता है, श्रृंगार से साधुता की तरफ का, तो उसका वर्णन है। तो वो कविता मैं समझे। विराजमान चुक्कियम समीय आरसीलियम, निहार अंग आप से झरी मनोज ताप से, लगो सुध्यान मित्त में विचार लाय चित्त में, सिंगार को उतारियम पीताम्बर सुधारियम। कितना सुंदर है कि यो स्वरूप जोगनी विभूत अंग से बनी, करे सरुद्र मालिका लखंत नैन लालिका, लपेट बेन शीश से लगी समाधि ईश से, लीलाट आध चंदवा बन्यो सुलाल बिंदुवा, दुशाल लाल रंग से लपेट आध अंग से, सरोज आसनम किए विदेह साधनम लिए, बन्यो स्वरूप बालिका मनो कनंक कालिका, मंगाए फेर आरसी स्वरूप देख के हंसी, स्वरूप देख के हंसी, स्वरूप देख के हंसी। बहुत सुंदर। अभी बहुत ही फिलहाल में वेरी रिसेंटली मैंने निमित्त करके एक प्रोडक्शन किया, कोरियोग्राफी, जो महाभारत से अम्बा शिखंडी के कथा पर आधारित है, कथा पर ही है। इस कोरियोग्राफी का अप्रोच कथाकार स्टाइल का है, जहाँ मैंने चारणी परंपरा में वार्तालाप दिखाया है और म्यूज़िक सेक्शन में मैंने चारणी छंद यानी कि वोकल का प्रयोग किया है, जिससे कोरियोग्राफी बहुत पावरफुल दिखती है। तो ये थोड़ा सा चारणी कथक के बारे में मैंने आपसे के साथ में शेयर। शीला जी, अभी आपने एक संस्कृति महोत्सव 2021 का एक बहुत अच्छा आयोजन किया घरानों को केंद्र में रखकर, और उसमें ऑटिज़म जैसे एक गंभीर बीमारी है, गंभीर विषय है, उसको लेके भी उसमें प्रस्तुति हुई, और वो अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत चीज़ है। तो आपसे हमारा आज का एक जो विशेष प्रश्न है कि ऑटिज़म जैसे सब्जेक्ट के साथ में आपने कला को जोड़ा और कथक के जरिए आप एक अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रही हैं, तो उसका कोई विशेष कारण? अभी मैंने संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य आर्टिस्ट और ऑटिस्टिक पीपल को सपोर्ट करने का था, और मुझे कथक की स्ट्रेंथ दिखानी थी। लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना, इसमें इस सब के ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशंस भी रहे गुरु और सीनियर आर्टिस्ट द्वारा, और ऑटिज़म जैसे थीम पर भी कथक की प्रस्तुति यंगस्टर्स के द्वारा हुई, बड़ी सफलतापूर्वक हुई। और
अलग 3 जनरेशन्स द्वारा कथक की प्रस्तुति हुई। तो जैसे मैंने बताया कि इस बार फेस्टिवल को आर्ट फॉर कॉज का थीम से लिंक किया गया था। जैसे कि फंड्स को रेज किया गया था। फंड्स वे रेज टू सपोर्ट आर्टिस्ट एंड पीपल लिविंग विद ऑटिज्म, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम। नाउ हमने ऑटिज्म क्यों चुना? तो मेरी शागिद है एक जो नाम है डॉक्टर शिवानी शर्मा, जो यूके बेस्ड है और वो एक साइकोलॉजिस्ट भी है। उसका काफ़ी रिसर्च इस सब्जेक्ट के साथ में जुड़ा रहा है। मैं हर समय मेरे शागिद को अपनी लाइफ से जुड़े हुए लेकिन डे टू डे वर्क एक्सपीरियंस को डांस के साथ में जुड़ने के लिए एनकरेज करती रहती हूँ। सो अंडर माय गाइडेंस शी स्टार्टेड लुकिंग एट द importance of the structure, rhythm, routine for these autistic people. She did research on that. We thought of creating a dance project, Rhythm in Chaos. Actually, it was produced by Swindon SAPEC. SAPEC is South Asian Performing Arts Center, and it was supported by England Arts Council grants. So, ये काफ़ी नेचुरल हो गया कि वी लिंक दिस संस्कृति महोत्सव विद दिस थीम। ऑल्सो ये बार फेस्टिवल भी ऑनलाइन था, तो उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा रहा और बहुत लोग के साथ में भी हम ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए जुड़ सके। आर्टिस्ट समाज के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ रहता है, तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जगाने का कारण ऐसे पर्पस के साथ में हम जुड़ जाएं कि एंटरटेनमेंट के साथ हम एनलाइटनमेंट और एजुकेशनल वैल्यूज़ का भी समाज में संचार कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे से कहा है कि पर्पस ऑफ आर्ट इज़ टू एंटरटेन, एनलाइटन एंड एजुकेट। शीला जी, आज आप हमारे साथ उपस्थित हुई। आपसे हमको गुरुओं से लेकर और बहुत सी चीज़ें, आपके अनुभवों की आपने हमारे साथ साझा की। तो आपका इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ध्येय जो कथक के प्रचार प्रसार को लेकर है, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक बार पुनः आभार। धा 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 ता कथुंगा ता धा गे ता ता धिंगे ता धा धिंगा ता किता taka tunga take taka tik tika taga diga tha nata na nata nata tana tha nata nata ta nata tana na nata na nata nata